শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরী। সে সময় মদন মোহনজি, গোবিন্দজি ও গোপীনাথজির মন্দির এই তিনটি ছিল প্রধান। বৃন্দাবনবাসী রূপে তিনি তিনটি মন্দিরের আরাধিত বিগ্রহ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে বলেন, আমি পঙ্গু, তাই পারমার্থিক জীবনে আমার প্রগতি অত্যন্ত মন্দ, তাই আমি আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মদন মোহন বিগ্রহকে তার প্রণতি নিবেদন করেছেন, যে বিগ্রহ আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। মদন মোহন বিগ্রহ সম্বন্ধ বিগ্রহ না, কৃষ্ণ ভাবনাময় সেবা সম্পাদনে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণকে জানার অর্থ নিজেকে জানা এবং নিজেকে জানার অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা। যেহেতু শ্রী শ্রী মদন মোহন বিগ্রহকে আরাধনা করার মাধ্যমে এই সম্পর্ক জানা যায়, তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রথমে এই বিগ্রহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। पंकज प्रभु। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, तब वहां मंदिरों की संख्या अधिक नहीं थी। उस समय मदन मोहन जी, गोविंद जी तथा गोपीनाथ जी यही 3 मंदिर प्रमुख थे। वे एक वृंदावन वासी के रूप में इन मंदिरों के अर्चा विग्रहों को नमस्कार करते हैं और भगवान से अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जीवन में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतः मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत के 15वें श्लोक में कृष्णदास कविराज जी सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह को सादर नमस्कार करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत संपादित करते समय हमारा पहला कर्तव्य होता है कृष्ण को जानना तथा उनके साथ अपने संबंध को जानना। कृष्ण को जानना स्वयं को जानना है और स्वयं को जानना कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है। चूंकि यह संबंध मदन मोहन विग्रह की पूजा करके सीखा जा सकता है, अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ষোড়শ মানে 16 শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অভিধেয় বিগ্রহ শ্রী শ্রী গোবিন্দজিকে তার প্রণতি নিবেদন করেন। গোবিন্দজিকে বলা হয় অভিধেয় বিগ্রহ, কারণ কিভাবে রাধা ও কৃষ্ণের সেবা করতে হয় তা তিনি আমাদের প্রদর্শন করেন। মদন মোহন বিগ্রহ আমি তোমার নিত্য দাস কেবল এটি প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দজি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। গোবিন্দজি নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। বৃন্দাবনের চিন্ময় ধামে সমস্ত গৃহগুলি চিন্তামণি রত্ন দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানকার গাভীগুলি হচ্ছে অপর্যাপ্ত দুধ প্রদানকারী সুরভি গাভী এবং সেখানকার বৃক্ষগুলি হচ্ছে যে কোনো বাসনা পূরণকারী কল্পবৃক্ষ। বৃন্দাবনী শ্রীকৃষ্ণ সুরভি গাভীদের নিয়ে বিচরণ করেন এবং তিনি শত সহস্র গোপিকাদের দ্বারা সেবিত হন, যারা সকলেই হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবী। শ্রীকৃষ্ণ যখন জড়জগতে অবতরণ করেন তখন তার ধাম বৃন্দাবন তার সঙ্গে অবতরণ করেন।
ঠিক যেমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার পরিকর বর্গ অনুসরণ করেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার ধামও অবতীর্ণ হয়, তাই বৃন্দাবনই জড়জগতের কোনো স্থান নয়। ভক্তরা তাই ভারতবর্ষে অবস্থিত অভিন্ন গোলক বৃন্দাবন স্বরূপ এই বৃন্দাবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ অবশ্য বলতে পারে যে সেখানকার বৃক্ষগুলি তো কল্পবৃক্ষ নয়, কিন্তু গোস্বামীরা যখন সেখানে ছিলেন তখন সেখানকার বৃক্ষগুলো ছিল কল্পবৃক্ষ। এখনো সেগুলি কল্পবৃক্ষই আছে, তবে সকলের পক্ষে তা দর্শন করা সম্ভব নয়। এমন নয় যে আমরা সেই বৃক্ষগুলির কাছে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই দাবি করলেই সে বৃক্ষগুলি আমাদের দাবি পূরণ করবে। ভগবানের ভক্ত না হলে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ দর্শন করা যায় না। গোস্বামীরা এক এক রাত্রে এক একটি বৃক্ষের নিচে অবস্থান করতেন এবং সেই বৃক্ষগুলি তাদের সমস্ত প্রয়োজন চরিতার্থ করত। সাধারণ মানুষের কাছে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবত ভক্তের মার্গে অগ্রসর হলেই সে সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অদ্ভুত চান প্রভু। सुमना करेंगे माता जी। जब ये मैं पढ़ू प्रभु क्या सुमना करेंगे माता जी पढ़ रही है क्या? जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो 16वें श्लोक में कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद को अपनी परिणति निवेदन करते हैं। गोविंद विग्रह को अभिधेय विग्रह कहा जाता है क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मदन मोहन विग्रह केवल यह स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु गोविंद के साथ सेवा की वास्तविक स्वीकृति दिखती है। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में महले चिंतामणि के बने होते हैं। गाय प्रचुर दूध देने वाली होती है जिन्हें सुरभि कहा जाता है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है वे उसे पूर्ण करते हैं। वृंदावन में कृष्ण सुरभि गौओं को चराते हैं और वहाँ के हजारों लाखों गोपियाँ उनकी पूजा करती है जो सब लक्ष्मियाँ होती हैं। जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब यही वृंदावन उनके साथ अवतरित होता है। जिस तरह किसी विख्यात व्यक्ति के साथ उसका दल चलता है, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनकी भूमि भी साथ आती है। अतः वृंदावन को इस भौतिक जगत से परे अवस्थित माना जाता है। इसलिए भक्तगण भारत में स्थित वृंदावन की शरण लेते हैं क्योंकि यह मूल वृंदावन की प्रतिकृति माना जाता है। भले ही हम शिकायत करें कि यहाँ पर कोई कल्प वृक्ष नहीं है, किंतु जब गोस्वामी वहाँ रह रहे थे तब कल्प वृक्ष विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इन वृक्ष से मांगने लगे, पहले उसे भक्त बनना होगा। गोस्वामी गण किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात ठहरते थे और ये वृक्ष उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत अद्भुत लग सकता है, किंतु ज्यों-ज्यों मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है त्यों-त्यों यह सब अनुभव होने लगता है। वृंदावन का हो गया ना वो पैरा? नहीं तो वो और है तो वो पैरा खत्म नहीं हुआ? हो गया खत्म हो गया। যে সমস্ত মানুষ জড়জগতের সুখ ভোগ করার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন তারাই প্রকৃত বৃন্দাবন দর্শন করতে পারবেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, कभी हम हे रब श्री वृंदावन। कौन सा भजन है? स्टार्टिंग लाइन गौरांग बोली
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে। আমরা যতই কৃষ্ণ ভাবনাময় হই ততই আমাদের উন্নতি হয়, তখন ততই সবকিছু চিন্ময় রূপে প্রকাশিত হয়। এভাবেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভারতবর্ষ স্থিত এই বৃন্দাবনকে চিৎজগতের গোলক বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন বলে জানতেন, এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের 16 শ্লোকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নিচে মণিমাণিক্য খচিত ময়ূর সিংহাসনে শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপিকারা নৃত্য কীর্তনের মাধ্যমে তাম্বুল ও সুস্বাদ্য আহার্য নিবেদন করার মাধ্যমে এবং তাহাদের ফুল মালায় সজ্জিত করার মাধ্যমে তাদের সেবা করছেন। আজও ভারতবর্ষে কৃষ্ণ ভক্তেরা ভাদ্র মাসে ঝুলন উৎসব উপলক্ষে সুদৃশ্য সিংহাসন অবস্থিত শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ ফুল দিয়ে সাজিয়ে নৃত্য গীতাদির মাধ্যমে এই উৎসব পালন করেন। সাধারণত বহু মানুষের সেই সময় ভগবানের উদ্দেশ্যে তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য বৃন্দাবনে যান। ইয়েস, আদুচেন প্রভু। इसलिए वृंदावन का वास्तविक अनुभव कौन से है प्रभु? ये विषय छाड़िया, ये जो इसके ऊपर वहीं से है प्रभु, वृंदावन का ठीक वास्तविक तो अनुभव। पढ़ रहे हैं, ठीक तो पढ़ रहे थे। वृंदावन का वास्तविक अनुभव उन व्यक्तियों को ही हो पाता है जो भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। एक महान भक्त पूछता है, कब मेरा मन भौतिक भोग की लालसा से शुद्ध हो सकेगा जिससे मैं वृंदावन का दर्शन कर सकूं। हम जितने ही अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे और जितने ही अग्रसर होंगे, सारी वस्तुएं उतनी ही आध्यात्मिक लगने लगेगी। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भारत के वृंदावन को आध्यात्मिक आकाश में स्थित वृंदावन जैसा ही माना और चैतन्य चरितामृत के 16वें श्लोक में वे राधा रानी तथा कृष्ण को वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जटित सिंहासन पर आसीन बतलाते हैं। ये तो वाला है ना प्रभु, वृंदावन रम्य स्थान। বসে আছে রত্নের তার মধ্যে হেমপীঠ। यस, राधा रानी तथा आसीन बतलाते हैं। वहां कृष्ण की प्रिय गोपियां राधा तथा कृष्ण की सेवा गाकर, नाचकर, तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूलों से सजाकर करती है। नहीं, ये तो वो वाला हो गया प्रभु, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल ईश्वर, इसमें है বসিয়া মালতি মালা দিবদহর গো। হ্যাঁ, मैं तांबूल आज किया भी भारत में तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूलों से सजाकर करती हैं। आज भी भारत में लोग झूलते हुए सिंहासनों को सजाते हैं और जुलाई अगस्त मास में इस दृश्य को पुनरुज्जीवित करते हैं। सामान्यतया उस समय लोग वहां के अर्चा विग्रह को नमस्कार करने वृंदावन जाते हैं। পরিশেষে মানে অবশেষে এট লাস্ট শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গোপীনাথ বিগ্রহের নামে তার পাঠকদের কাছে তার আশীর্বাদ প্রদান করছেন। মিউট কর দিজিয়ে মোহিত আগরওয়াল মাতাজি। শ্রী গোপীনাথজির বিগ্রহ হচ্ছেন ব্রজ গোপিকাদের প্রাণনাথ রূপে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীর ধ্বনি করেন তখন সমস্ত গোপিকারা সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে তাদের গৃহস্থালির কাজ পরিত্যাগ করে যখন তার কাছে আসেন তখন তিনি তাদের সঙ্গে রাস ও নৃত্য লিপ্ত হন। ভগবানের এই সমস্ত লীলা বিলাসের কাহিনী শ্রীমদ্ ভাগবতের 10ম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত গোপিকারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের খেলার সাথী এবং অনেকেই ছিলেন বিবাহিতা, কেননা
প্রাচীন ভারতবর্ষে 12 বছর বয়স অতিক্রম করার আগেই বালিকাদের বিবাহ হয়ে যেত। ছেলেদের অবশ্য 18 বছরের আগে বিবাহ হতো না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন 15-16 হওয়ার তখনই তিনি হচ্ছিলেন অবিবাহিত। তা সত্ত্বেও তিনি সেই সমস্ত গৃহবধূদের তাদের ঘর থেকে ডেকে আনতেন এবং তার সঙ্গে নৃত্য করার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করতেন। এই নৃত্যকে বলা হয় রাস নৃত্য এবং তা হচ্ছে বৃন্দাবনের সর্বোত্তম লীলা বিলাস। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় গোপীনাথ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গোপিকাদের প্রিয় প্রাণনাথ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদের জন্য গোপীনাথজির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেছেন, ব্রজগোপিকাদের প্রাণনাথ শ্রী গোপীনাথজি শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্বাদ করুন, তোমরা গোপীনাথের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা প্রার্থনা করছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে তার মধুর মুরলীধ্বনির দ্বারা ব্রজগোপিকাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন, তিনিও যেন সেইভাবেই তার অপ্রাকৃত ধ্বনির দ্বারা এই গ্রন্থের পাঠকদের মন আকর্ষণ করেন। হিন্দি कोई पढ़िए मैं पढ़ूं प्रभु। पढ़िए। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को गोपीनाथ विग्रह के नाम से पर आशीर्वाद देते हैं। गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सारी गोपियों को अपनी बंसी की ध्वनि से आकृष्ट करते हैं और जब गोपियां अपने घर के सारे काम काज छोड़कर आ जाती थी तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते थे। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में वर्णित है। ये गोपियां कृष्ण की बाल्य अवस्था की संगिनी थी और उनमें बहुत सी विवाहित थी, क्योंकि भारत में लड़कियों का विवाह सामान्यतया 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। यहाँ लड़कों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व नहीं होता। अतएव कृष्ण जो उस समय 15 या 16 वर्ष के थे, विवाहित नहीं थे, फिर भी वे इन लड़कियों को अपने घर से बुलाते और उनके साथ नृत्य करते थे, नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। जब नृत्य रासलीला कहलाती है, यह नृत्य रासलीला कहलाती है और यह वृंदावन की लीलाओं का सर्वाधिक उच्च स्तर का विलास है। इसलिए कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं, क्योंकि गोपियों के प्रिय प्राणनाथ है। हरे कृष्ण। कृष्णदास हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे बोला गया कि कृष्ण 14-15 साल के थे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वृंदावन में कृष्ण 11 साल कितने महीने ही रहे थे। यहाँ 15-16 बोला गया है, 14-15 नहीं। ओके, अदुचंद प्रभु। हरे कृष्ण। पहले तो यहाँ पे माता जी श्रीमद् भगवत गीता का 10वां स्कंद है कि भागवत का है दूसरा? कंफ्यूज हो गया कि 10वें स्कंद कहाँ गया भगवत गीता में। दूसरा यहाँ पे नव यौवनम च शब्द जो है ना, उसको यहाँ पे वर्णित कर रहे हैं। तो नव यौवनम जो शब्द है उसका मतलब होता है 15 से 16 साल की आयु जो होती है। ठीक है प्रभु, लेकिन भगवत गीता में क्या 10वें स्कंद में गोपियों का साथ नहीं दिया गया है उनको? भगवत गीता में भागवतम में ठीक है, लेकिन भगवत गीता में क्या नहीं है? नहीं है, नहीं है। भगवत गीता में नहीं है। हिंदी में अनुवाद थोड़ा गलत हो गया, बंगाली में भागवतम ही लिखा हुआ है। हिंदी में भी भागवत है प्रभु, भागवत लिखा हुआ है। भगवत गीता माता जी ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। भागवतम इंग्लिश में भी भागवतम ही है, श्रीमद् भागवतम 10th कैन। अच्छा प्रभु, वो नव यौवनम जो बोल रहे थे आप, तो व्हाट वाज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट कि 15 से 16 वर्ष की जो आयु होती है वो नव यौवनम वर्ष होती है। तो यहाँ पे इसलिए 15 से 16 वर्ष यहाँ पे डाला गया है कि भगवान जो है नव यौवन है, अप्रॉक्स ईयर। ऐसा नहीं एग्जैक्ट 15 साल। Used to look like 16 years even in a युद्ध स्थल
मतलब यहाँ पे युद्ध में भी 15 से 16 साल की आयु लग रही थी भगवान की, Okay. वहाँ पे वर्णन आता है। ओके, ठीक है। सुमना गौरंग माती, क्लियर होगी आपका प्रश्न? ओके, मतलब वो दिख रहे थे वैसे, हाँ, यही बोलना। यस। मैंने उस समय, उस उम्र में सबसे, एक्चुअली एक व्यक्ति सबसे सुंदर लगता है ना उसी उम्र में, 15-16 की आयु में। आई थिंक दे लुक द मोस्ट, वैसे ज्यादा आकर्षित लगते हैं उस समय। आकर्षित लगते हैं, हाँ। 100 साल के ऊपर की आयु थी युद्ध स्थल में, फिर भी 15 से 16 वर्णन किया हुआ है महाभारत में। एंड आई थिंक ही नेवर ग्रू ओल्ड आफ्टर 24, ऐसे कुछ है ना। माने ही ऑलरेडी, ही आई मीन 125 साल भगवान ने आयु माने इधर बिताया। 16 साल के बाद भगवान ऊपर नहीं दिखते। आई थिंक 24 है ना, 24 के ऊर्ध्व नहीं हुआ। 24-25 साल तक, मैक्सिमम कुछ। 25 साल के दिखते थे। यस, कंटिन्यू माता जी, सत्यभामा माता जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद प्रदान करने को कहते हैं। वे गोपीनाथ अर्थात कृष्ण आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आप गोपीनाथ द्वारा आशीष प्रदान प्राप्त करें। जिस प्रकार कृष्ण अपनी बंसी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकृष्ट कर लेते थे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य चरितामृत में लेखक प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार गोपीनाथ अपनी दिव्य ध्वनि से इसके पाठकों के मन को भी आकृष्ट कर ले। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा टाइम है, हम लोग इसके बाद मेरा बुक में दिया हुआ है गुरुवादी मंगलाचरण प्रथम परिच्छेद स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, आज हम लोग का भूमिका खत्म हो गया फाइनली, तो बहुत अच्छा लगा ये भूमिका। तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज बंगाली में पढ़ लेते हैं, खत्म करते, कल हिंदी पढ़ के फिर हम लोग श्लोक में कल प्रवेश करेंगे। प्रथम परिच्छेद गुरुवादी मंगलाचरण है आप लोग के पास? होगा जरूर। श्री चैतन्य महाप्रभु, यस प्रभु है। শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু, তিনি হচ্ছেন গভীর নিষ্ঠা সহকারে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভক্তদের জীবন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সবচাইতে অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর দুইজন মুখ্য অনুগামী। শ্রীল রূপ গোস্বামী শিষ্য ছিলেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বাमी ছিলেন श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी शिष्य। ओके, तो ये शिष्य माने ये तो शिक्षा गुरु का शिष्य, ठीक है। हो सकता है, ओके, अभी उसमें जाएंगे नहीं। श्रील कविराज गोस्वामी शिष्य छिलेन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्हें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तार सेवक रूपे स्वीकार करेছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে শিষ্য রূপে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরুদেব। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে শিষ্যত্ব বরণ করেন। হ্যাঁ पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी दूजन मुख्य अनुगामी वो कौन? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अच्छा, ये वाला सब समझ में आया सबको? ये परंपरा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, उनका शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका शिष्य जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, उनका शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर, उनके शिष्य उनका शिष्य बोलेंगे नहीं, उनका बेटा पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनका शिष्य हम लोग का श्रील प्रभुपाद। আমরা যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এই সংস্করণে ভগবত প্রসাদ ব্যতীত আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক প্রসূত নতুন কোনো কিছু থাকবে না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিগুণাত্মিকা এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি বদ্ধ জীবের অগোচর অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব।
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গের শরণাগতি ব্যতীত জড় বিষয়ের মহাপণ্ডিতেরাও সেই অপ্রাকৃত জগতের নাগাল পেতে পারে না, কেননা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই এখানে যা বর্ণনা করা হবে তাতে জড় মনের জল্পনা কল্পনা প্রসূত পরীক্ষামূলক চিন্তার কোনো অবকাশ নাই। এই গ্রন্থে মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনার কোনো স্থানই নাই। পক্ষান্তরে তা হচ্ছে বাস্তব চিন্ময় অভিজ্ঞতা, যা পূর্বোক্ত গুরু পরম্পরার দ্বারা স্বীকার করলেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই পরম্পরা ধারা থেকে স্বল্প বিচ্যুত হলেই পাঠক শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, যা হচ্ছে উপনিষদ, পুরাণ, বেদান্ত এবং বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত, ভগবদ গীতা আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ববেত্তা পারমার্থিকবাদীর সর্বোচ্চ স্তরের পাঠ্যপুস্তক। यस माताजी। तो जो हमारी जो गुरु परंपरा है ये तो शिक्षा परंपरा है ना, दीक्षा परंपरा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें बताया जा रहा है कि नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जगन्नाथ। एक सेकंड, शिष्य लिख के छोड़ दिया है, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु लिखा कुछ क्या? नहीं, तो शिष्य रूप में स्वीकार किया इसलिए। हाँ, अभी इसका विश्लेषण भी दिया नहीं है इधर, जैसे अभी लिखा है, मुझे भी नहीं समझ में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके बारे में क्या लिखा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, इनका रूप गोस्वामी छिलेन श्री रघुनाथ दास, श्री चैतन्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी शिष्य, लिखा है ना फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में। हाँ लिखा है। अभी कविराज गोस्वामी इन दोनों का क्या शिष्य है? इन दोनों शिक्षा गुरु है कविराज गोस्वामी का, इन दोनों से तत्व मिला है और चैतन्य चरितामृत लिख पाया उन्होंने, करेक्ट? हाँ। तो इसीलिए अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी इनका एक्चुअल दीक्षा किन से, जैसे उस दिन हिरणमय गौरांग प्रभु बता रहे थे दीक्षा के बारे में, तो इसलिए कुछ लिखा नहीं है, गुरु लिख के छोड़ दिया। तो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ऐसे कुछ डिटेल में किया, लिखा नहीं। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হিরণময় গৌরাঙ্গ প্রভু, ঠিক আছে, আপনি কোথাও পড়েছিলেন মনে আছে এগুলো আমার, বলুন, ওটাই তো বলবেন নাকি? ओके, ठीक है। तो प्रभु एक ही बात है, जे इतना 80 साल 90 साल उम्र में जब निकले तो वो दीक्षा लेके निकले, जो माने 10 साल उम्र होने से हो जाता था उस टाइम में, इसलिए उनका दीक्षा हुआ था जितना संभव है नित्यानंद प्रभु से हुआ था। हम भी कोई किसी जगह से पढ़ा है। ये उनका ये लॉजिक भी उतना खराब लॉजिक है नहीं एक्चुअली। देखिए, बहुत बुरा काल में इन्होंने वृंदावन में आया और इन लोग दोनों से इनको शिक्षा मिला और चैतन्य चरितामृत लिखा, करेक्ट, कविराज गोस्वामी। तो लेकिन इतना बुरा काल में क्या दीक्षा लेगा क्या इन दोनों से? नहीं, दीक्षित तो हो जाते थे 10-12 साल 15 साल में उस समय। तो अभी और एक भी प्रश्न आता है, ये अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु गए थे क्या? आई डोंट नो, अभी बहुत कुछ एक बात बोले तो बहुत कुछ आ जाएगा फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। शिक्षा गुरु ही बोला जाएगा ना, जो अभी जो दिया हुआ है तो शिक्षा गुरु ही तो कहे जाएंगे वो लोग। क्योंकि देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभी हमने पढ़ा ना, तो उनका तो पुत्र था लेकिन पिता गुरुदेव भी था, क्योंकि शिक्षा भी मिला था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और दीक्षा गुरु थे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा उसमें तो दीक्षा गुरु परंपरा नहीं आता है एक्चुअली, देखा जाए तो सुमन गौरंगी माता जी। प्रभु जी, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को दीक्षा दी? भक्ति विनोद, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने सील गौर किशोरदास बाबाजी को दीक्षा दी। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में लिखा था उनके बाद। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद तो उनका पुत्र के बारे में लिखा है। प्रभु पहले गौर किशोरदास बाबाजी महाराज हिंदी में। वही कंफ्यूजन हो गया प्रभु पूरा। कंफ्यूजन क्या है, माने
लिखा है तो गलत भी नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, मेरा एक मिनट, मैं शायद भूल गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। शिल भक्ति विनोद ठाकुर गुरुदेव, अच्छा, শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে শিষ্যরূপে স্বীকার করেছেন, যিনি ছিলেন শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের গুরুদেব জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আবার শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী ঠাকুর প্রভুপাদের শিল গুরুদেব শিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে শিষ্যস্ত বরণ করিয়েছিলেন। बंगाली में क्लियर है प्रभु जी, बंगाली में क्लियर है, हिंदी में कंफ्यूजन। हिंदी भी पढ़िए वापस से माता जी, कॉमा देख के पढ़िएगा, वापस से पढ़िए पूरा। सील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किसको शिष्य के रूप, इसमें गुरु के रूप में, मतलब ये शिष्य के रूप में स्वीकार किया, दीक्षित नहीं लिखा है प्रभु जी। किसने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। किसको? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना सेवक बनाया, नरोत्तम दास ठाकुर का आया, ठीक है। इसके बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया। हाँ। फिर आता है जिन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया, और इन्होंने, अब यहाँ पे क्या आएगा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को किसने दिया शिक्षा? जगन्नाथ दास बाबा जी को। ऊपर आ रहा है, कंटिन्यूएशन देखिए कैसे किया हुआ हिंदी में। इन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी जो को दीक्षा दी। अच्छा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लिए लिखा हुआ है क्या ये? हाँ, ऊपर जो लिखा हुआ था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, इसके बाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के विषय में बताया जा रहा है, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी से शिक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के इसमें आ रहा है वर्णन कि उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से लिया दीक्षा। उसके बाद फिर मेरा नाम, इनका प्रश्न था एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर के ये भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ संपर्क क्या था? शिक्षा के माध्यम से। हमारी जो गुरु परंपरा है प्रभु जी, पूरी शिक्षा के माध्यम से, न कि दीक्षा के माध्यम, क्योंकि उन्होंने दीक्षा लिया था बिपिन चंद्र, भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा लिया था बिपिन चंद्र गोस्वामी से, बिपिन चंद्र गोस्वामी जी से लिया था। तो मैंने बताया था ना, वो लीला आता है कि बिपिन चंद्र गोस्वामी दीक्षा देने के बाद पैर आगे कर देता है और भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रणाम करता है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके बोलता है, आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि सीनियरिटी में बहुत हो सकता है आपने उनको दीक्षा दिया, क्योंकि दीक्षा देने की परंपरा है, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया कि आपको प्रणाम करने के आपने अलाउ किया। वो एक लीला आता है उसमें। एनीवेज, थोड़ा लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं माता जी, नहीं तो अभी 7 बज गया ऑलरेडी। नहीं, आज कल कर लेंगे, ठीक है, यहीं रखते हैं। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृतला हरि बदन भरिया सबके बल हरि हरि।